Good morning, students. So let's begin our class. In the last class, we have seen what are variables and what are how to assign them, and we have already seen the ways of creating variables. You can see on your screen it is written marks is equals to 70. This is the way. This is the simple way using which you can create a variable. You have to simply give a name and assign a value to it. This is the way using which you can assign variables. All right. After this, we have also seen. This was the important topic that was covered in the last class. That variables are not storage containers in Python. Python is a programming language in which the variables are not storage containers. Now, what are storage containers? So, in the previous class, we have already seen that if you assign a value like age is equals to 15, so it will be stored at some place in the memory address. All right, so this was seen in the last class. So if you can see that 202530 is the memory address where a value of 15 has been assigned. Now if you change this particular value to age is equals to 20, so what will happen? The same memory address will get changed and its value will be 20. So you can see it is containing that particular memory address is containing the value 15, and when you assign a new value to it, so that same memory address contained value 20. So variables are storage containers in many programming languages but not in Python. So this was the traditional programming languages. So what about Python? So Python does what? Python simply creates some front load database. As soon as you start writing a program, it creates a front loaded database and it assigns some preloaded values and stores those values to a particular memory address. And when you use that particular memory value, so it will refer to that memory address. Like जैसे कि आपने value दी age is equals to 15. Now, if you are providing value as age is equals to 15, so it is allotted at a place 20216 in the memory. ठीक है, अब 20216 मेमोरी पे 15 वैल्यू स्टोर्ड है. अब अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके अपडेट कर दूं और इस वैल्यू को कर दूं मैं एज इज इक्वल्स टू 20, तो अब यहाँ 20216 पे तो 15 स्टोर्ड था, तो यहाँ पर 15 ही स्टोर रहेगा. 20 कहाँ स्टोर्ड है? तो 20 राइट नाउ कहाँ पर स्टोर्ड है? 20296 पर. तो अब क्या होगा? अब वेरिएबल के लिए जो ये एज वाला लेबल है वो किस पे लगा हुआ मिलेगा? वो एज वाला लेबल अब लगा हुआ मिलेगा 20296 मेमोरी एड्रेस पर. तो यहाँ पर क्या सेम मेमोरी एड्रेस पे दो वैल्यूज कंटेन हुई? नहीं हुई. तो पाइथन के अंदर क्या होता है, ये स्टोरेज कंटेनर्स नहीं होते हैं. मतलब कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये चेंज करते हैं अपनी पोजीशंस को, ये कंटेनर्स नहीं होते हैं यहाँ पर. Alright, so this we saw in our previous class. After that we saw L values, R values and the topic like मल्टीपल असाइनमेंट्स. यहाँ पर एक टॉपिक था जिसमें मल्टीपल असाइनमेंट किया जा सकता था. एक ही वैल्यू को मल्टीपल अगर आपको वेरिएबल्स पे असाइन करना है तो वो पॉसिबल था. उसके बाद हमने देखा था मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स पे असाइन करना है तो वो पॉसिबल था. वैल्यूज़ को अगर आप लोगों को स्वैप करना था, x की वैल्यू y को देनी थी, y की वैल्यू को x को देना था, तो वो भी पॉसिबल था. कैसे किया था? तो ये देखो, ये सिंपल सा एग्जांपल, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स, मतलब x की वैल्यू y के बराबर हो गई और y की वैल्यू x के बराबर हो गई. तो सिंपली आप वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर सकते थे. ये हमने अभी तक पाइथन के अंदर वेरिएबल्स असाइन करने के लिए ये सब हम अभी तक देख चुके हैं. अब हमारी आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं, चलिए उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. एक मिनट, यहाँ आगे आएगा. ये सब हम देख चुके थे. हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज वेरिएबल डेफिनेशन. व्हाट इज दिस वेरिएबल डेफिनेशन? लेट इज गो थ्रू दिस टॉपिक. ऑलराइट, अब देखिए क्या होता है कि पाइथन में ऐसा होता है, पाइथन क्या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आप लोगों को कोई वेरिएबल असाइन करना है तो उसको एक वैल्यू देना पड़ेगी. ठीक है, जब तक आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दोगे तब तक वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइन नहीं होने वाला है. इसको एक एग्जांपल से समझो, शायद आपको जल्दी क्लियर होगा उससे. यहाँ पर एक
कोड लिखा हुआ है 3 लाइन का। यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट एक्स, और लिखा हुआ है यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 20, और फिर लिखा हुआ है प्रिंट एक्स अगेन। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये ऊपर बोल रहा है प्रिंट एक्स। एक्स क्या है, किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर कहीं पर भी इन्होंने एक्स को डिफाइन ही नहीं किया। अब जब तक आप वेरिएबल को क्रिएट नहीं करोगे, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे, तब तक वो इस तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसको आपको एक वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी। जब तक आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे तब तक वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता। ऑलराइट, तो इसको देखो, यहाँ पर जब इन्होंने इस कोड को रन किया, ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एक्स इज इक्वल्स टू 20 प्रिंट एक्स। जब यहाँ पर इनने इस कोड को रन किया तो पहली ही लाइन में एरर आ जाएगी। देखो, पहली ही लाइन में एरर आ गई। ये जो पहली लाइन थी ना आपकी, इस पहली लाइन में एरर आ गई। क्या आ गई? नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको वेरिएबल्स यूज करना है तो आपको उनको डिफाइन करना ज़रूरी है। तो इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करें? इसके ऊपर एक्स को कोई भी वैल्यू दे दो। एक्स को सपोज वैल्यू दे देते हैं 0। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये इन्होंने क्या किया, इसकी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दिया, ये एक लाइन ऐड कर दी, x इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या हुआ, x की वैल्यू पहले से असाइंड है जो कि 0 है, आपने उसको प्रिंट कर दिया तो 0 प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। फिर आपने x की वैल्यू 20 दे दी तो x की वैल्यू जो 0 थी, अब वो वैल्यू कहाँ दूसरे मेमोरी एड्रेस को रिफर करेगी जहाँ पर 20 स्टोर्ड होगा। अब वो मेमोरी एड्रेस को रिफर करेगी x नाम के लेबल से, और उसको आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो आपका आउटपुट क्या आएगा? 0 और 20। ये आपका आउटपुट आना चाहिए। ये लाइन अगर आप नहीं लिखते हो, ये पहली वाली लाइन अगर आप नहीं लिखते हो, तो ये जो 3 लाइन्स आप लिखोगे ये एरर शो करेगी ही करेगी, पक्की बात है। क्योंकि आप x को प्रिंट करना चाह रहे हो और x को आपने डिफाइन ही नहीं किया। आपने एक वेरिएबल बनाया ही नहीं है x, और आप उसको बिना बनाए ही आपके प्रोग्राम में यूज़ करना चाह रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको वेरिएबल पहले क्रिएट करना होता है, पहले कोई वैल्यू असाइन करनी होती है। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग टू अस। अब आप जब ऐसा कर दोगे, इस तरीके से कर दोगे, 4 लाइन का कोड लिखोगे, तो पक्का है कि कोई एरर आना नहीं है। ऑलराइट, हाँ। अब ये जो हमने किया ना, अभी x इज इक्वल्स टू 0 असाइन कर दिया, फिर x इज इक्वल्स टू 10 असाइन कर दिया, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है पाइथन के अंदर। इसको बोला जाता है डायनामिक टाइपिंग। क्या होता है डायनामिक टाइपिंग? डायनामिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि आपने जैसे x की वैल्यू दे दी 10, तो पाइथन के अंदर ये एक खासियत है पाइथन की, कि पाइथन में जो भी आप वेरिएबल देते हो, वो वेरिएबल किस टाइप का है वो डिसाइड होता है उसके अंदर दी गई वैल्यू से। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू a, मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू a, तो x के अंदर कैसी वैल्यू है? तो x के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर मैंने वैल्यू दे दी x इज इक्वल्स टू 5, तो x कैसा डेटा टाइप है? x, तो x है एक न्यूमेरिक, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो x होता है, ये x की खुद की कुछ टाइप नहीं होती, ये x ऑटोमेटिकली उस टाइप का हो जाता है जिस टाइप की वैल्यू आप उसको देते हो। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता है आपको क्या करती हैं? दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, जैसे कि आपको एक्स डिफाइन करना है ना, तो आपको पहले ही लिखना पड़ता है int x इज इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो x इंटीजर टाइप का है, तो उसमें हमेशा इंटीजर वैल्यू ही आएगी। आप इसको ऐसा लिख दोगे तो वो एरर दे देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। क्योंकि आप इंटीजर बोल रहे हो और स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जबकि पाइथन क्या कर रहा है, पाइथन सिंपली आपसे क्या ले रहा है, x इज इक्वल्स टू 10, एज सिंपल एज दैट। 10 नंबर है तो x का डेटा टाइप हो गया नंबर। यहाँ पर आपने लिख दिया x इज इक्वल्स टू b, तो क्या होगा, अब x की वैल्यू कैसी हो गई, स्ट्रिंग टाइप की हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, पाइथन बहुत इजीली
अपने डेटा टाइप को, अपने वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज कर लेता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज गिवन टू दैट वेरिएबल। ऑलराइट, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल जो इन्होंने हमको बताया हुआ है उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, पहले x की वैल्यू है 10, आपने प्रिंट कर लिया x को, क्या वैल्यू प्रिंट होगी 10। अभी क्या था, ये न्यूमेरिक था। अब आपने लिख दिया x इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड और प्रिंट कर दिया x, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू जो पहले न्यूमेरिक थी, वो न्यूमेरिक वैल्यू को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो होता है ये डायनामिक टाइपिंग कहलाता है। मतलब कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें डायनामिक टाइपिंग अलाउड है। मतलब आप अलग अलग वैल्यूज़ देकर उस वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। ये बहुत बड़ी खासियत है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि ये डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करती है। डायनामिक टाइपिंग क्या होती है, डायनामिक टाइपिंग होती है कि हम जब कभी किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो उस वेरिएबल पे डिपेंडेंट होकर, वो जो वेरिएबल उस वैल्यू पे डिपेंड होकर वो वेरिएबल अपना टाइप डिसाइड करता है। x इज इक्वल्स टू 10 तो x न्यूमेरिक है, x इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड तो x स्ट्रिंग है। तो पहले ये x न्यूमेरिक था, आपने उसको स्ट्रिंग वैल्यू दे दी तो x स्ट्रिंग हो गया। तो ये जो कैपेबिलिटी है इस वेरिएबल की टू चेंज इट्स डेटा टाइप, दिस इज नोन एज डायनामिक टाइपिंग। ठीक है, इसको डायनामिक टाइपिंग कहा जाता है। यहाँ पर कहीं पर डिफाइन किया होगा, तो ये देखो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ऊपर साइड, मैं इधर कर लेता हूँ। ये देखो थोड़ा सा ये अपन इसको रीड करते हैं। प्लीज नोट हियर दैट वेरिएबल x डज नॉट हैव अ टाइप बट द वैल्यू इट पॉइंट्स टू डज हैव अ टाइप। है ना, x का खुद का कोई टाइप नहीं है, पर x किस पे डिपेंडेंट है, जो वैल्यू आप इसको पॉइंट कर रही होगी ना वेरिएबल को, वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा x का टाइप। सो यू कैन मेक अ वेरिएबल पॉइंट टू अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप बाय असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दैट टाइप। है ना, मतलब आप किसी वेरिएबल को अलग अलग टाइप का बना सकते हो, आप किस तरीके की वैल्यू उसको पॉइंट करोगे उसके आधार पर। है ना, पाइथन कभी भी कोई एरर रेज नहीं करता। ठीक है, पाइथन डज नॉट रेज एरर कि एक टाइप से दूसरे टाइप की वैल्यू दे दो और पाइथन एरर दे दे, नहीं। पाइथन डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है। डायनामिक टाइपिंग होती ही ये है कि एक वेरिएबल जो कि किसी न्यूमेरिक टाइप का है उसको अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देंगे तो वो वेरिएबल भी स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा एंड पाइथन विल नॉट रेज एनी एरर एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक टाइपिंग। इसको डायनामिक टाइपिंग कहा जाता है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करती है। ऑलराइट, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं बट यहाँ पर हमने पाइथन के बारे में ही देखा। पर जो सी प्लस प्लस जावा, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो हैं जो स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट करती हैं। अब स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है, तो देखो यहाँ पर साइड में आपको ये बताया हुआ है, ये इसको आप रीड करना। स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है, डायनामिक टाइपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक टाइपिंग। इन स्टैटिक टाइपिंग a data type is attached with the variable when it is defined first and it is fixed। क्या होता है, जैसे मैंने लिख के बताया ना, आई एन टी एक्स इज इक्वल्स टू 10, तो आई एन टी एक्स मैंने पहले ही लिख दिया, आई एन टी एक्स मतलब एक्स इंटीजर टाइप का है, इसमें इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है। आप आई एन टी एक्स इज इक्वल्स टू सी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो जो पाइथन है वो स्टैटिक टाइपिंग ना सपोर्ट करते हुए डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करती है। और डायनामिक टाइपिंग बोलती ही ये है कि आप टाइप बदल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू विच इट इज पॉइंटिंग टू। दूसरी जो ये लैंग्वेजेस होती हैं, देखो नीचे सबसे नीचे की ये दो लाइंस यहाँ लिखा हुआ है सी प्लस प्लस, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये किसको सपोर्ट करती हैं, तो ये स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट करती हैं। एक बार जो डेटा टाइप का टाइप डिसाइड हो गया तो आप उसको बदल नहीं सकते, जबकि पाइथन के साथ ये केस बिल्कुल भी नहीं है। पाइथन में आप डेटा टाइप का टाइप उसका आप सिंपली किसी भी वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं। पर चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डायनामिक टाइपिंग को ये सपोर्ट करता है, चलो वेल एंड गुड। पर मेरे पास मैंने जैसे कुछ लिख दिया, मैंने लिखा एक्स, सॉरी मैंने लिखा देखो x इज इक्वल्स टू 2.5,
मैंने ये वैल्यू लिख दी x इज इक्वल्स टू 2.5। अब मुझे तो पता ही नहीं है कि ये चलो न्यूमेरिक टाइप है, ये मुझे पता है, पर न्यूमेरिक टाइप में भी कौन से टाइप का ये मुझे नहीं पता। अब मैं कैसे पता करूं? तो पता करने का एक सबसे आसान तरीका है अपने पास। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं टाइप फंक्शन। हम इस टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि ये जो x है वो कौन से टाइप का है। तो मैं यहाँ लिखूंगा टाइप फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर x। जैसे ही मैं लिख दूंगा टाइप ब्रैकेट के अंदर x, तो ये क्या करेगा, मुझे आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। जैसे यहाँ पर क्लास इंट प्रोड्यूस किया ना, वैसे यहाँ पर प्रोड्यूस कर देगा क्लास फ्लोट। सिंपली फ्लोट प्रोड्यूस कर देगा आउटपुट में, और मुझे पता चल जाएगा कि ये जो x वेरिएबल है इसमें किस तरह का डेटा टाइप वाली वैल्यू को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। हम उन एग्जाम्पल्स को फटाफट एक बार रीड करते हैं और उनको समझ के देखते हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू 10। ए का टाइप पता कर लिया, आंसर आ गया क्लास इंट। ऑलराइट, अगला इन्होंने यूज़ किया है, देखो अगला लिया है a इज इक्वल्स टू 20.5। इसका टाइप निकाला, टाइप a, आंसर क्या आ गया कि ये फ्लोट है। ठीक, तीसरा इन्होंने बनाया, देखो सॉरी ये ऑलरेडी यूज्ड है। तीसरा इन्होंने बनाया, अब उसमें लिख दिया a इज इक्वल्स टू हेलो। इसका टाइप पता किया, इसने बता दिया स्ट्रिंग। तो ये जो तीन अलग अलग कलर्स से मैंने पॉइंट करके बताया, आप देखो इन्होंने ए को एक तो डायनामिक टाइपिंग भी यूज़ करके बता दिया, और डायनामिक टाइपिंग यूज़ करने के साथ साथ इन्होंने टाइप फंक्शन भी यहाँ पर यूज़ करके बता दिया कि टाइप फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये डायनामिक टाइपिंग और टाइप फंक्शन हमको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स बनाए, आपने एक चीज़ देखी, हम पहले डिसाइड कर देते थे x इज इक्वल्स टू 4, वाई इज इक्वल्स टू 3। हम खुद ही बता देते थे कि इनकी वैल्यू क्या होगी। पर अगर हमको ऐसा नहीं करना है, हमको यूज़र को बोलना है कि चलो तुम वैल्यू बताओ, तो यूज़र से मुझे इनपुट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यूज़र मुझे इनपुट दे, यूज़र मुझे बताए कि भैया ये क्या है। मैं बोलूँ एंटर एनी नंबर, और यूज़र नंबर डाल दे अपने मन से, कोई 1 डाल देगा, कोई 5 डाल देगा, कोई 7 डाल देगा। ऐसा करना हो तो अभी क्या हो रहा था, अभी आप ही नंबर बता रहे थे, मतलब अपन ही नंबर बता रहे थे प्रोग्राम बनाते समय। पर मैं अब ये नहीं करना चाहता। अब मैं यूज़र को कहना चाहता हूँ कि भैया नाउ यू डिसाइड व्हाट वैल्यू यू वांट टू गिव एंड आई विल गिव यू द आउटपुट। मीन्स यू गिव मी द इनपुट, आई विल गिव यू द आउटपुट। जब आप ऐसा चाहते हैं कि यूज़र इनपुट दे और आप उसका आउटपुट प्रोड्यूस करके बताएं, तो यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक खास फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। उस फंक्शन को बोला जाता है इनपुट फंक्शन। ऑलराइट, जैसा नाम वैसा काम। यूज़र से आपको इनपुट लेना है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन है वो फंक्शन है इनपुट फंक्शन। अब देखते हैं हम ये इनपुट फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, आपने लिख दिया नेम, जो भी वेरिएबल आपको देना था आपने दे दिया नेम। इनपुट फंक्शन बोला तो इनपुट फंक्शन आपने लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स। ब्रैकेट के अंदर आपने क्या पैरामीटर क्या आर्ग्यूमेंट पास करी, आपने लिखा व्हाट इज़ योर नेम। जैसे ही आप इसको एंटर दबाओगे IPython कंसोल पे लिख कर, जैसे ही इसको आप एंटर दबाओगे तो देखो क्या हो रहा है। जैसे ही आपने ये लाइन लिखी और एंटर दबाया तो नीचे लिखा आ गया क्या, व्हाट इज़ योर नेम। अब आपको यहाँ पर देखो ये क्या लिखा, टाइप योर डेटा हियर, मतलब अब आपको यहाँ पर आपका इनपुट लिखना है। ठीक है, मैंने लिख दिया ABC और एंटर दबा दिया, तो अब यहाँ पर नाम मेरा एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कभी यूज़र से इनपुट लेना होता है तो आपको इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगेन लेट अस सी, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको लेकर हम थोड़ा सा समझते हैं। चलिए देखिए, पहली लाइन देखते हैं। ये इनपुट लिखा हुआ है, मतलब यूज़र ने इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, हमने कोडिंग करी हुई है। नेम इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन व्हाट इज़ योर नेम। एंटर दबाया, स्क्रीन पर लिखा आया एंटर योर नेम, क्योंकि आपने यहाँ पर एंटर योर नेम लिखा था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आर्गुमेंट पास किया था वो आपने नाम डाल दिया सिमर। अब आपसे फिर से पूछा गया एज
एज इनपुट एंटर योर एज। अब यहाँ पर आपने एंटर दबाया, नीचे लिखा आ गया एंटर योर एज, आपको डालनी थी एज, आपने डाली 16। अब जब आपने ऐसा किया तो देखो, जब आप इस तरीके से करते हो तो ये इस तरीके से आउटपुट जनरेट होकर आपको मिलता है। ठीक है, नेम इनपुट था, आउटपुट क्या आया सिमर। एज इनपुट था, आउटपुट क्या आया 16। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़र से भी इनपुट लिया जा सकता है और यूज़र इनपुट का यूज़ करके भी प्रोग्राम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, एक खास बात, अब देखो अभी तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे जिनमें आपको यूज़र इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा, वो बस समझने के लिए काफ़ी है कि इनपुट फंक्शन का यूज़ करके आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। देखिए, इनपुट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है या एक लिमिटेशन है जो आप बोल लें, इनपुट फंक्शन में दिया जाने वाला इनपुट हमेशा स्ट्रिंग होता है। ठीक है, हमेशा। आप नंबर भी पास करोगे तो वो नंबर को भी क्या मानेगा कि वो नंबर एक स्ट्रिंग है। देखिए, अभी ऊपर ने हमने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया था, अब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो, यूज़र से इनपुट लिया था हमने नेम, तो देखो आउटपुट क्या आया सिमर। क्या लगाया उसने, सिंगल कोट लगाया सिमर के साथ। सिंगल कोट लगाया है मतलब ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। आपने लिखी एज, उसने क्या आउटपुट दिया 16। 16 के साथ क्या लगाया, ये कोट्स लगाए, मतलब उसने इस 16 को भी किस में कन्वर्ट किया है, उसने इस 16 को भी str मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट किया है। मतलब हमेशा जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो आउटपुट कैसा होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है, चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर आप उसमें अगर इनपुट देते हो तो वो भी एक स्ट्रिंग के जैसा ही काम करेगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन यूज़र से हमेशा स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ही लेता है, ये हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, हमेशा वो स्ट्रिंग में ही इनपुट लेगा, वो कभी भी नंबर्स के फॉर्म में इनपुट नहीं लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये एग्जांपल से समझना। आपने इनपुट किया एज, व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, स्क्रीन पे प्रिंट हुआ व्हाट इज़ योर एज, आपने आपकी एज डाली 16। अब आपने नीचे एक और कोड लिख दिया एज +1, मतलब आप क्या करना चाह रहे थे, एज को 1 से बढ़ाना चाह रहे थे। तो आपने जैसे ही एज +1 किया तो देखो कुछ एरर आ गई, ये कुछ एरर आ गई, एज +1 लिखने पर एरर आ गई। क्यों आ गई भैया एरर, अरे एज एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप 1 जोड़ोगे तो जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ सकता। आपको वो 16 दिख ज़रूर रहा है, वो 16 नंबर जैसा ज़रूर है, पर इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेता है, तो ये 16 जो है वो नंबर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है। अब आप बोलो कि 16 + 1, तो यहाँ पर 17 नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 16 जो है वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में एक नंबर कैसे जुड़ सकता है। मैं बोलूँ a + 10, तो a में 10 जोड़ोगे तो थोड़ी ना कुछ लॉजिक है कि a में 10 कैसे जुड़ेगा। मैं बोलूँगा 1 + 10 तो आप 11 बोल दोगे, पर a + 10 कैसे बोलोगे, है ना। तो यहाँ पर ये इलॉजिकल कहलाता है और ये यहाँ पर एरर प्रोड्यूस कर देता है कि ये एक आपने गलत टाइप यूज़ किया है। देखो यहाँ पर लिख दिया उसने मस्ट बी str नॉट int, है ना, मतलब यहाँ पे ये इंट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है और आप स्ट्रिंग में 1 जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, सो इट इज़ प्रोड्यूसिंग एन एरर। ऑलराइट, तो अगर आपको ऐसा करना हो, देखो यहाँ पर उन्होंने उसका टाइप भी प्रोड्यूस करके बताया है कि उसका टाइप देख लेते हैं कि टाइप एज तो क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप का है। आउटपुट क्या आया है कि वो स्ट्रिंग टाइप का है, न्यूमेरिक टाइप का या इंट टाइप का नहीं है ना। तो देखो हमेशा जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा क्या कर रहा है, वो हमेशा स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। अब मुझे नंबर्स को उसमें से रीड करना है तो क्या करें, अब ये सोचने वाली बात है। अब शायद नया कंसेप्ट हमको फिर से सीखना पड़ेगा कुछ, कि हमको अब नंबर रीड करना है। आप 16 भी डाल रहे हो तो वो स्ट्रिंग बन रहा है, 7 डाल रहे हो तो भी स्ट्रिंग बन रहा है, ABC डाल रहे हो तो वो तो स्ट्रिंग है ही है, हेलो डाल रहे हो तो वो स्ट्रिंग है ही है, 10.5 डाल रहे हो तो वो भी स्ट्रिंग बन रहा है। तो मैं 10.5 को नंबर कैसे समझूँ, मैं 16 को नंबर कैसे समझूँ। ये इनपुट फंक्शन का यूज़ करके मैं 16 को इंटीजर न्यूमेरिक 16 कैसे बना सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर 2 फंक्शंस होते हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं।
वो दोनों फंक्शंस हैं ये, इंट और फ्लोट फंक्शन। जब आप इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन का यूज़ करोगे इनपुट फंक्शन के साथ, तो आप उन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर पाओगे इंटीजर या फ्लोट में। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में ही डेटा आ रहा है, नंबर भी है तो भी स्ट्रिंग में आ रहा है। आप बोल रहे हो कि मुझे वो नंबर एक्सेस करना है, तो आपको वो नंबर, अगर आपने 100 लिखा है तो INT यूज़ करना पड़ेगा इनपुट के साथ, आपने 10.5 लिखा है तो फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा इनपुट के साथ। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है, वही वाले एग्जाम्पल को इन्होंने यहाँ पर लिख के बताया। देखो, अब देखो आंसर 17 आ गया, 16 + 1 17 हो गया। कैसे हुआ देखते हैं। एज, व्हाट इज़ योर एज, ये हमने इनपुट दे दिया, इनपुट फंक्शन लगाकर आपने व्हाट इज़ योर एज स्क्रीन पर लिखा, देखा, आपने डाला 16। आपने अब जो 16 डाला, अब सिंपली आप उसके बाद ये लिख रहे थे एज +1, तो यहाँ पर एरर आ रही थी। यहाँ पर एक नया काम कर दिया इन्होंने क्या कर दिया, एज इज इक्वल्स टू INT फंक्शन लगा दिया और लिख दिया एज इज इक्वल्स टू INT एज। मतलब ये जो एज है ये अब इंटीजर टाइप का एज बन जाए, है ना। तो इसने ऐसा कन्वर्ट कर दिया। तो अब एज के अंदर वैल्यू कितनी हो गई, 16 थी। अब इसने वो 16 को क्या कर दिया, इंटीजर टाइप का कन्वर्ट कर दिया। जब इसने स्ट्रिंग 16 को न्यूमेरिक 16 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आप 16 + 1 करोगे तो 17 आउटपुट आएगा ही आएगा। ठीक है, बट एक और चीज़ आप समझना है यहाँ पर। अब ये जो है इसमें आप लोग फ्लोट वैल्यू भी पास कर सकते हो, पर अभी एक चीज़ हम पहले ये समझते हैं कि ये जो हमने लाइन लिखी ना, ये और ये, हम इन दोनों को एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। इस कोड को कैसे लिखेंगे तो चलो वो देखते हैं। 2 लाइन्स में लिख सकते हो, नो डाउट एरर नहीं आएगी, बट सिंगल लाइन में भी लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर इसने उसी कोड को सिंगल लाइन में लिख के बता दिया। जो आपने 2 लाइन में लिखा था ना, क्या कर दिया, आप इतना तो लिख ही रहे थे, एज इज इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज़ योर एज, इतना तो आप लिख ही रहे थे। देखो मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, ये तो हम लिख ही रहे थे ना, एज इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन व्हाट इज़ योर एज। बस आपको क्या करना है, ये जो इनपुट फंक्शन है इतने पूरे के आगे इंट फंक्शन लगा देना है। समझ रहे हो, ये इनपुट फंक्शन के आगे आप लोगों को इंट फंक्शन लगा देना है बस। अब क्या होगा, अब एज की वैल्यू जो भी आप डालोगे वो नंबर में ही रहेगी। देखते हैं, ये देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल को भी देखते हैं और नीचे वाले एग्जाम्पल को भी देखते हैं। मार्क्स इज इक्वल्स टू, हम इतना तो लिखते थे, मार्क्स इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर मार्क्स। बस आपने क्या कर दिया, फ्लोट फंक्शन और लगा दिया। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू यहाँ से जनरेट होने वाली है, ये वैल्यू अब ऑटोमेटिकली कैसी वैल्यू रहेगी, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली अब फ्लोट टाइप की वैल्यू रहेगी। तो आपने वैल्यू डाली 73.5, ठीक है। एक और आपने एज नाम का वेरिएबल लिया, उसको इंट फंक्शन लगाया, मतलब जो भी है वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और आपने इनपुट फंक्शन लगा के लिख दिया व्हाट इज़ योर एज। अब जो भी आप एज डालोगे वो ऑलरेडी यहाँ पे आपने इंट फंक्शन लगाया, मतलब वो इंटीजर में ही कन्वर्ट होकर आएगी। देखिए व्हाट इज़ योर एज आपने डाला 16, आपने इसके टाइप को देखा, टाइप क्या है, तो टाइप मार्क्स, इधर पे फ्लोट लगाया था तो देखो यहाँ पर ये फ्लोट आया है। टाइप एज, यहाँ पर आपने इंट लगाया था तो देखो इंट आया है। तो यहाँ पर जो इनपुट फंक्शन होता है उसके साथ सिंपली फ्लोट फंक्शन या इंट फंक्शन लगा देने से वो नंबर को रीड करने लगता है। मतलब अभी तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा था ना, बट अब वो उसको नंबर के फॉर्म में रीड करने लगेगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। जो भी आज हमने पढ़ा है इसको एक बार आप ज़रूर से रीड आउट करिएगा। मैं इसकी PDF भी ग्रुप पे वीडियो डालते टाइम अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग जब ये वीडियो देख लें तो ये PDF को एक बार गो थ्रू कर लें, एक ओवरव्यू उसका देख लें, ताकि ये टॉपिक जो हमने आज पढ़े हैं वो क्लियर हो जाए। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।